Good morning, each and everyone. Welcome to Kheda Park, or you can say Syed Bhagat Singh Park. It being, I think, Saturday. Yeah. Holiday. Huh? Yeah, it's a Saturday. Saturday, holiday, And and persons are just, election day, it is there, is it not here? Besides this person are coming to the park, stalling on the road, somebody playing football, somebody playing cricket, or with somebody chatting about politics, this and that. All of a sudden, I'm lucky enough that today I have got a person 90 plus. 90 plus is just, Yeah, he's grandpa. yeah, I took his interview today. हाँ, Yeah, he's very good. अब यहाँ पे हम बात करते हैं, will you English do और partly English, partly हिंदी, है ना? तो पहले मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ. You are welcome to my channel. It is a speaking classes or you can say English grammar classes, you can say. अब यहाँ पे जैसे मैं सब बच्चों से पूछता हूँ, थोड़ा सा क्लोज आइए, सब क्लोज आ जाइए. मैं सब बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा, तुम भी बताओ. आइए, मैं जाता हूँ का इंग्लिश क्या होगा? हाँ हाँ, क्योंकि हम में से कोई हाँ ये तो हो गया मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा. हाँ अब सुनो, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है. यहाँ during our time it was translation taught. Maybe because of that reason we are not likely to coming mistake. Right now English to English we are not sons and daughters of English one. We will have to know Hindi, we will have to know our own language. After that Hindi to that language, English to that this much basically. अब यहाँ पे मैं 5 मिनट में तुम्हारा इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ. Tense a kind of just time and tense. Do you know what is the difference between time and tense? I just told you earlier. है ना? Time right now what is it here? It is 7. It is 7. But when we tell 7 year, 8 year, back now and earlier, this is to be call. है ना? Listen. मैं समझ के चलो ये tense होता है, ये हो गया time. जब मैं बोलता हूँ it is time. And tense has got 3 sort. First one is known as present. Second one is past. Third one is future. Present has also got 4 subsection. First one is simple present. Second one is present continuous. Third one is present perfect. Third one is the fourth one is present perfect continuous. अब इसको इस तरह समझो. ऐसा बता रहा ताकि कभी नहीं भूलोगे. हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंत में ता ती ते रहते, ता है ती है रहते, उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट. Let me clear one more thing. बोलिए. हाँ. जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं और जो सिंपल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, these are called indefinite or simple. Yeah. I know it that person. In that case, you जैसे मान के चलिए. You can deny that word. जैसे sun rises in the east. No one can deny. So it will be in present indefinite or simple present tense. Listen, please. Let me just tell it. After that, we will discuss it. Actually, I too PGT. Yeah. Okay. No problem. I can just take your interview right now. You right? Just don't go for that. Okay. अब अगल में आ जी कोई बात नहीं. अब यहाँ वन थिंग सब्जेक्ट प्लस B1/B5. तो B1/B5, B1 इन जनरल सपोज मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाता, ही गोज. वेन एवर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज देयर इन दैट केस विद द वर्ब वी आर यूजिंग एस और ES. एम आई करेक्ट? है ना? मैं नहीं जाता हूँ, क्या होगा मैडम? मैं नहीं जाता हूँ, डोंट हिट, मैं नहीं जाता हूँ. हाँ, आई डू नॉट गो. क्या मैं जाता हूँ? डू आई गो. क्या मैं नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो. अगर इसमें आते हैं खास करके, जैसे कि क्या वह जाता है, डज ही गो. वह नहीं जाता, ही डजंट गो, है ना? ही डजंट गो. क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो. क्लियर? क्यों मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ? या अब यहाँ पे जैसे मान लो इस तरह से हमने कर लिया तो कभी नहीं भूलेंगे क्या? नहीं. अब यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं. ये पर्सन क्या होता है? फर्स्ट बको कोई बात नहीं, सीख रहे हो, है ना? अरे पर्सन, लेट मी in Hindi as we do सर्वनाम्स ना, that is called in person. First person, second person and third person. I told you earlier. Yeah. What are perspectives? Perspectives. Yeah. अब यहाँ पे listen please. अब यहाँ पे what is first person, what is second person, what is third person? Somebody tell differently. Let me just clarify. It is my way of. First person I, second person you, third person he, see it. You remember it here. उसको और भी कभी नहीं भूलने के लिए जो बोलता है फर्स्ट पर्सन है. That is what I. Yeah. The person speak is first person. Listener and the other person. हाँ. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप दोनों सुन रहे हो सेकंड पर्सन. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? टेंस के बारे में. ये थर्ड पर्सन. ये कभी नहीं भूलोगे. भूल जाओगे? नहीं ना. आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. Present continuous simply tells a particular work starts and continues for certain period. उसको और भी आसान समझने के लिए वैसा सेंटेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे एक्सेट्रा, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्या होगा? अभी हाँ, आई एम गोइंग. क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग. मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग. क्या मैं नहीं जा रहा हूँ? एम आई नॉट गोइंग. है ना? यही तो फंडा, और कुछ तो है नहीं, है ना?
गो एक और ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में लूँगा आपका। इसके बाद थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। एनी वर्क स्टार्टेड एंड फिनिश्ड। और इसको इस तरह समझ लो, सब्जेक्ट प्लस बी हैज ऑब्लिक हैव प्लस B3। अब यहाँ पे एक सवाल और, कहाँ पे हैज़ का यूज़ करोगे, कहाँ पे हैव का यूज़ करोगे? थर्ड पर्सन। हैज़ का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव का यूज होता है। क्लियर? मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। पिताजी आ चुके हैं, फादर हैज़ कम। क्या माँ खाना बना चुकी है, हैज़ मदर कुक्ड, है ना? क्या माँ खाना नहीं बना चुकी है, हैज़ मदर नॉट कुक्ड। क्लियर हो जाएगा ना? अब इतना करने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। लास्ट में आता है, मैं यहाँ सवाल पूछता हूँ, मैं पिछले 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? क्या? मैं पिछले 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ। आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 9 months। अब बच्चा मैं सुन लो इधर में, यहाँ पे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है? एनी वर्क दैट स्टार्ट्स एंड लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड इज नॉट शेयर, है ना? अब यहाँ 1 मिनट लेट मी टेल यू। यहाँ फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस B1 प्लस ING, उसके बाद टाइम एलिमेंट है तो फॉर है या सिंस लिखते हैं, है ना? जैसे मैं 10 महीने 9 महीने से दिल्ली में रहता आ रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 9 months। क्लियर? क्या मैं दिल्ली में 9 महीने से रहता आ रहा हूँ? हैव आई बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 9 months? क्या मैं दिल्ली में 9 महीने से नहीं रहता आ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 9 months? लाइक दैट। ये तो हो गया। मैं सुबह से दौड़ता आ रहा हूँ, मैं सुबह से दौड़ता आ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम इज देयर, यू विल हैव टू राइट सिंस। क्लियर? और भी सिंपल, मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग। क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ईटिंग। लाइक दैट, इज नॉट शेयर। This is what is known as simple, it's not simple, present tense you can say. And I do think it about that you have got patience, and I simply just actually killed your time to just move on the road. Okay. I'm sorry for that. I'm sorry for that. Is it not Thank fair? But here I take the classes of nearly 26 children every day, and not a single paisa I charge. For the last 1 year I do the thing here in Delhi, and for the last 40 years I have been in this profession. That is very nice. Yeah. of you, no? You know, I had been unpaid lecturer in the college for three college. Okay. Salary was 50 rupee only. Only 50 rupees they gave. But one thing they gave. What is it here? This fluency I simply got from the college. I started teaching right from class 1 to graduation. Or I say